students. So today we are going to verify or do an experiment to verify Ohm's law. Like in our previous classes we have discussed about Ohm's law, that Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the applied potential difference across the ends of the conductor. So today we will be doing it practically. So first you need to understand how to connect the appliances and which appliance is called what. Let me start from here. You can see from here, this is basically your main supply 220 volts that is coming from this particular socket and connected through this wire, and it comes here. That is your battery eliminator. Battery eliminator means with the help of this you can change alternating current into direct current. Here you can see it is written set volts, like this way. Basically ये जो switch लगा हुआ है इसके ऊपर, you can rotate it to adjust the voltage. You can do it at a 0 volt, 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10 volt, 12 volt, जितने भी आपको वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं. नाउ हेयर आई एम हैविंग DC आउटपुट. जो भी मेरा पीछे से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जा रहा है. नाउ थिंग इज हाउ टू कनेक्ट द सर्किट. First you need to understand this positive one. This is the positive terminal and black one is negative terminal. Red one is positive, black one is negative. Now this positive wire that is connected, now you can see the wire. This wire is connected to the positive end of the ammeter. This is the ammeter. Ammeter is always connected in series. Ammeter is a device which measure current. So this is a device which is measuring current here. Right now it is giving some value, approximately 1.3 ampere. It is giving 1.3 ampere right now. So the positive end of the battery or battery eliminator, it is connected to the positive end of the ammeter. It is connected in series. Series का क्या मतलब है, सीधा करंट आ रहा है बैटरी से और इसके अंदर से पास होकर के it is entering from this wire. You can see the wire from this wire and it is connected here. Now you can see वो बैटरी से कनेक्टेड है पीछे, वहाँ से एमीटर के पास आ रहा है और एमीटर से यहाँ पर मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें मैंने कनेक्ट किया है. अब ये जो आपका करंट है वो बैटरी से एमीटर में इस रेजिस्टेंस के अंदर आ रहा है. ये रेजिस्टेंस देखिए, इस पर सिंबल बने हुए हैं, ये सारे के सारे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. 1 2 2 5 10 20 20 50 देन 100 देन 200 200 500. तो जितना भी हमें जो है यहाँ से रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं. So they are all connected in series. So the range of this resistance box, it is from 1 to 10,000 ohm. I can connect 1 ohm also and I can connect 10,000 ohm also from this resistance box. I am going to repeat it again. This is battery eliminator. Positive end of the battery eliminator is connected with the positive end of the ammeter, and then this end is connected here to the resistance box. Now current will follow this path, will enter here, then it will move there, and this is the other wire which is connected here to the rheostat. This is called rheostat. This is basically variable resistor. इसको variable resistor भी बोला जाता है. इसको हम variable resistor इसलिए बोलते हैं because इसको हम resistance को vary कर सकते हैं with the help of this. क्या है बेसिकली, ये पीछे से जो करंट आ रहा है वो इस रजिस्टर को यहाँ पे मैंने इस टर्मिनल पे कनेक्ट किया है. अब ये पूरी की पूरी जो वायर है, ये एक वायर है यहाँ पर, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा इस वायर का. तो अगर मैं इसको यहाँ पे आगे कनेक्ट करूँगा तो कम वायर जो है कांटेक्ट में, कम वायर से करंट फ्लो होगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम आएगा. अगर मैं इसको आगे कर देता हूँ तो वायर की लेंथ बढ़ने से, क्योंकि ये अपना कॉइल हुई पड़ी है इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, तो ये लेंथ बढ़ने से अगर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो रेजिस्टेंस जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा. ये बेसिकली वेरिएबल है, इसलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोला जाता है कि आप इसको किसी भी वैल्यू पे एडजस्ट कर सकते हो. आप इसको यहाँ फ्रंट पे भी लेके जा सकते हो, बिल्कुल कम रेजिस्टेंस कर सकते हो, और अगर लास्ट पे ले जाओगे तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे लास्ट पे. ओके, अब इसके कनेक्शंस कैसे हैं देखो. कनेक्शंस कैसे हैं, ये वाला जो वायर पीछे से आ रहा था आपका एमीटर से होकर रेजिस्टेंस बॉक्स से, वो मैंने यहाँ कनेक्ट किया है फर्स्ट पॉइंट पे ताकि ये वायर से जुड़ जाए. दूसरा वाला मैंने यहाँ नीचे नहीं कनेक्ट किया है, क्योंकि अगर आप नीचे कनेक्ट करोगे तो सारी की सारी वायर जो है
वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। तो मैंने ऊपर वेरिएबल के साथ कनेक्ट किया है, मतलब ये वाला जो आपका जो नोब है ऊपर, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से करंट इधर जाना इसमें चला जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ से करंट इधर चला जाएगा। अगर इसको मैं फ्रंट से कर देता हूँ, लेट से इसको मैं आगे ले जाता हूँ, यहाँ से करता हूँ अगर मैं, तो क्या होगा, जो आपका करंट आ रहा है वो सीधा यहाँ से इस पाथ से होता हुआ सीधा आगे चला जाएगा। ओके, तो दिस इज़ बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं रियोस्टैट। नाउ आगे फ्रंट पे इसके साथ मैंने कनेक्ट किया है एक स्विच, दिस इज़ द स्विच। ये की बोल सकते हो आप इसको, ओपन एंड क्लोज करने के लिए। इसको मैंने खोल दूंगा तो क्लोज हो जाएगा, आपका सर्किट ओपन हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा की को तो सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और ये वाली वायर जो है आपने देखा यहाँ पे मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ी है, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट क्या है, यहाँ से होता हुआ फ्रॉम दिस पाथ ये आपका एमीटर के अंदर जा रहा है, ठीक है। एमीटर से होता हुआ ये वाली वायर के थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स में गया करंट, रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ यहाँ से फॉलो करता हुआ ये यहाँ पे आया करंट आपका, यहाँ से होता हुआ ये रियोस्टैट के अंदर गया, रियोस्टैट से यहाँ पर, और फिर यहाँ से एंटर करता हुआ यहाँ से करंट आपका ये टैपिंग की के पास गया, और टैपिंग की से होता हुआ ये आपका फिर से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर गया। तो एमीटर आपका सीरीज़ में कनेक्ट रहा। देखो करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हुआ, करंट आया सीधा अंदर गया, घूम करके आगे चला गया, तो करंट एमीटर में सीधा जा रहा है। सो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। जैसे ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो मैंने वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस, मतलब एक एंड यहाँ पे कनेक्ट किया है, दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्ट किया है। यू कैन सी हियर आई हैव कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ दी voltmeter. This is the voltmeter, you can see it is giving the value 0 1 2 3 4 5 volts. Right now it is showing 0.6 volts, तो 0.6 वोल्ट अभी ये रीडिंग शो कर रहा है। तो ये मैंने पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट किया है। एक बार इसको सर्किट डायग्राम से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। सर्किट डायग्राम में क्या है देखिए, दिस इज़ दी सर्किट डायग्राम। हियर यू सी, यहाँ पर मेरे पास दिस इज़ दी बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ये कहाँ से कनेक्टेड है आपका एमीटर में, पॉजिटिव के साथ। फिर आगे ये वाला वायर आपका रेजिस्टेंस में जा रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स से होता हुआ नीचे रियोस्टैट है, रियोस्टैट के आगे की है, और की के आगे आपका नेगेटिव टर्मिनल है। सेम मैंने वैसे ही कनेक्ट किया है। पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से ये एमीटर में जा रहा है, एमीटर में से ये रेजिस्टेंस में जा रहा है, रेजिस्टेंस से होता हुआ ये रियोस्टैट के अंदर जा रहा है, रियोस्टैट से पास होती हुई वायर आपकी की के अंदर जा रही है, और की से फिर ये कहाँ जा रही है, आपकी बैटरी के अंदर जा रही है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज़ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, करंट इज एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज़ द एमीटर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, यहाँ से होता हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसके बाद रियोस्टैट, और फिर की, और फिर लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बीच में मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया है जो रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाया है, एक एंड इधर लगाया है, एक एंड इधर लगाया है। तो ये वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो दो एंड्स मैंने अलग अलग जगह पे लगाए हैं वोल्ट मीटर की। Now let's move to the Ohm's law. This is the basic what you say circuit diagram for circuit connections for verification of Ohm's law. Now what Ohm's law is? Ohm's law states that voltage applied across the ends of the conductor is responsible for the current flowing in the conductor. तो मैं इसको आगे ले लेता हूँ अभी, ताकि आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाए। अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई। तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण करंट आपका बिल्कुल कम, जीरो के आसपास है करंट आपका, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 पॉइंट समथिंग है। अब मैं क्या करूँगा, इस रेजिस्टेंस को कम कर देता हूँ, क्योंकि ये वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जैसे ही रेजिस्टेंस, देखो मैंने ऐसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस कम किया है, तो वहाँ पर जो है करंट की वैल्यू बढ़ चुकी है आपकी। करंट आपका 4.5 एम्पेयर हो चुका है, और वोल्टेज आपकी 2 वोल्ट के आसपास आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी रीडिंग कंसिडर करता हूँ, फर्स्ट रीडिंग अगर मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स लगा हुआ है इसका, ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो ऐसा नहीं हो सकता। अभी तक मैंने कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही मैं की ओपन करूँगा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 200 ओम कनेक्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और 200 ओम मेरा कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ज़रूर होगा। जितना भी हमारे पास वायर्स हैं, कॉपर की वायर्स हैं, तो हम देख लेते हैं कि हमारी फर्स्ट रीडिंग क्या है। हमारी फर्स्ट रीडिंग जो है उसमें वोल्टेज जो है आपकी 1.89 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, 1.89 के बीच में, क्योंकि ये ऑपरेटर्स भी हिल रहा है साथ में। अगर मैं इसको
पकड़ के रखता हूँ यहाँ पर, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 वोल्ट एंड जो आपका करंट है इट इज़ 4.7 एम्पेयर के आसपास है, 4.7 4.8 एम्पेयर के आसपास है आपका करंट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने लिखी है करंट 4.7 एम्पेयर, वोल्टेज इज़ 1.8 वोल्ट। द सेकेंड रीडिंग मैंने पीछे से वोल्टेज जो है वो कम करी है। चलिए देखते हैं कि वोल्टेज कम करने से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है हमारा। मैंने वोल्टेज कम करी तो मेरा वोल्ट मीटर जो वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.8 वोल्ट के आसपास है। 0.8 वोल्ट की वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा रहा है और आपका जो करंट है यहाँ पर वो 2.6 एम्पेयर के आसपास आ रहा है। सो वी विल नोट इट आउट, लेट्स नोट इट आउट। So I have written both the readings here. First reading was 4.7 ampere current and voltage was 1.8 volt. Second is 2.6 ampere and your voltage is 0.8 volt. तो अभी जो मैंने रीडिंग्स ली हैं मैंने लिखी हैं 4.7 एम्पेयर 1.8 वोल्ट वोल्टेज, और जो V ओवर I की जो रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरी 0.38 आ रही है, और 2.6 एम्पेयर 0.8 वोल्ट पे मेरी जो V ओवर I की रेशियो वो 0.31 आ रही है। यहाँ पर रेशियो एम्पेयर नहीं लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ इन दोनों के बीच में, मैंने एक साइड पे वोल्टेज लिखा है एक साइड पे करंट लिखा है, और अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली करंट मैंने इस एक्सिस पे लिखा है, एम्पेयर में है करंट, वोल्टेज आपकी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्ट में है। मैंने ग्राफ प्लॉट किया है 0.8 वोल्ट के ऊपर आपका जो करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.6 एम्पेयर के आसपास है, तो यहाँ मैंने पॉइंट मार्क किया है। और आपका 1.8 वोल्ट के आसपास जो है आपका करंट 4.7 एम्पेयर है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहाँ से जोड़ता हूँ तो इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन। तो इट मीन्स ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। थोड़ी बहुत जो फ्लक्चुएशन यहाँ पे रेजिस्टेंस में आई है V ओवर I R इज इक्वल टू V अपॉन I जो है हमारा रेजिस्टेंस है, ये जो फ्लक्चुएशन आई है ये थोड़ी बहुत आएगी क्योंकि अपरेटस भी जो है 100% एक्यूरेट नहीं होता है, तो इसको जो है हम जो है यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। सो दैट वाज योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मीन्स कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो आपका करंट भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। कम वोल्टेज पे कम करंट था, ज़्यादा वोल्टेज पे आपका करंट क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर हैविंग क्वेरीज यू कैन आस्क मी। थैंक यू।